Good evening, class. I'm welcome you all in today's online class. We will be discussing set B, which will be discussed appropriately with you all. I request you that it should be a two-way communication. We, as a teacher and student, would be discussing on each and every question so that we can end on a mutual discussion, right? So you don't have to worry अगर आपको कोई चीज़ आती नहीं है या if you are having some doubts, please go through the session and after the session you can ask your doubts, right? So what is the motive of this session? I will be helping you out with the right format that has to be written for your upcoming paper that is scheduled on 6th of next month, that is 6th of April. I will be discussing the paper and the each and every question which is there in the question paper with you all, right? So I will be asking question to you. I want you to be attentive. I want you to answer me when I will be asking you the question. So जैसे कि निधि मैम ने आपको इंस्ट्रक्ट किया है and it has been instructed by me also that whenever we are having our paper we have to start with the section C. देखिए सेक्शन सी से इसलिए आपको रिकमेंड किया जा रहा है बिकॉज दिस इज द ओनली सेक्शन विच वी नो द बेस्ट. ठीक है, वेन एवर यू विल बी देयर एट यूर प्लेस यू विल बी प्रिपेयरिंग दिस section at the best, and we have to make the first impression, the best impression in front of the evaluator. So I would like to go with section C first, followed by section B, and you need to attempt section A at the last. So starting with section A, bacche, the first question is there from the poem, right? It's an extract based question. I want everyone to switch on the cameras. Please switch on the cameras, everyone. Okay. Okay, so where did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love but did not act so lovingly. Was that the day? So ये poem कहाँ से ली गई है? We are talking about which poem, बच्चे? From which poem this extract has been taken? Can anyone answer? The childhood. Very good. This extract is being taken from childhood. Okay, who's the poet of the poem? The very first Marcus Nathan. Marcus Nathan is the poet of the poem. Bache, you must know the poems, right? You must be well aware about the extracts. You must be well aware about the poets too. Okay, the second question says, what does the poet experience about the adults? पोएट ने एडल्ट्स के बारे में क्या एक्सपीरियंस किया? Who will answer? क्या लगता है आपको पोएम पढ़ने के बाद पोएट को क्या एक्सपीरियंस हुआ रिगार्डिंग एडल्ट्स? Who will answer? Class, I want you to answer. बच्चे लिटरेचर पढ़ना शुरू किए? Yes sir. खातिब, क्या आंसर होगा? पोएम अगर आपने पढ़ी है तो चाइल्डहुड में पोएट को अडल्ट्स के बारे में क्या लगता है? Yes sir. Actually पोइट मतलब एक्सपीरियंस करता है एडल्ट्स के बारे में. ये सोचता है कि फॉर एग्जांपल जैसे जो एडल्ट्स हैं वो मतलब वो लव वगैरह या मतलब प्रीच्ड करते हैं, उसके बाद मतलब प्यार से वगैरह रिस्पेक्ट से बातें करते हैं. बट टुडे जनरेशन की अगर हम बात करेंगे तो सर मतलब वहाँ पे वो थोड़ा सा जनरेशन गैप है. एडल्ट्स जो मतलब जो चाइल्ड हैं, मॉडर्न चाइल्ड हैं, वो एडल्ट्स के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं. ओके बेटा, ये जो जनरेशन गैप वाली आपने बात बोली है, दिस इज़ नॉट फ्रॉम दिस पोम, दिस इज़ फ्रॉम फादर टू सन. बेसिकली पोएट ये एक्सपीरियंस करता है कि अडल्ट जो हैं वो हमेशा लव प्रीच करते हैं, है ना. दे टेल अबाउट टू लिव विद प्रॉपर हार्मनी एंड लव, है ना. वो टीचिंग जो है उनकी लव की है, बट उनकी एक्शंस में लव कहीं दिखाई नहीं देता. यस सर. ठीक है, दे प्रीच ऑफ लव बट इन फैक्ट दे आर नॉट लविंग एंड केयरिंग. वो असलियत में लविंग और केयरिंग नहीं होते हैं, राइट. गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, व्हेन डज द पोएट फील हैविंग वर्चुअली लॉस्ट हर चाइल्डहुड? इस पोएम में पोएट को कब लगा कि उसने अपना बचपन जो खो दिया है? जब उसको अपने इंडिविजुअल कैरेक्टर के बारे में पता चला, जबकि वो मतलब 12 इयर्स का था. वेरी गुड. जब उसे अपनी इंडिविजुअलिटी के बारे में पता लगा, जब वो इंडिपेंडेंट होने लग गया. और वो कब से शुरू हुआ? जब उसकी एज 12 ईयर्स की होगी. वेरी गुड. ओके, एक्सप्लेन. बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली.
कौन लविंगली एक्ट नहीं करते? So adults, right? They preach, but they are actually not loving and caring in their action. They only pretend. वो सिर्फ प्रिटेंड करते हैं, बट एक्चुअली में प्रैक्टिकलिटी में वो लविंग और केयरिंग नहीं होते, और वो हमेशा लव को प्रीच करते हैं मगर उनके एक्शन में कभी भी लव दिखाई नहीं देता. इज दिस एक्सट्रैक्ट इज क्लियर टू यू ऑल? इस एक्सट्रैक्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम? Okay, so we are moving to the next question. Again, this is a short answer type question from the poems only. In this question, you will be getting 3 questions and you have to go with 2 questions. Okay? Each question carries 3 marks, so the total markage is 6. आपकी poem जो है ये 10 marks की आती है. 4 + 6 = 10, जिसमें 4 marks का extract based question है और 6 marks के short answer type question है. Okay. The question says, the poet's mother laughed at the snapshot. What did this laugh indicates? Poet की जो mother थी, this question is from the photograph. ठीक है, शर्लेट ऑल्सन का. पोएट की जो मदर थी वो क्यों स्नैपशॉट पे हंस रही थी? सर एक्चुअली जो ये पोएम बता रही है कि मतलब इसमें जो मदर का जो चाइल्डहुड है वो मतलब एक हैप्पीनेस की गुजरा है, मतलब उसका जो चाइल्डहुड था वो बहुत हैप्पी था. वो मतलब फील्स करती थी अम्यूज जब वो अपने चाइल्डहुड फोटोज में वो देखती थी, बाद में उसको वो रियलाइज होता. वेरी गुड. चाइल्डहुड फोटोज में उसने क्या देखा? स्नैपशॉट में पर्टिकुलर एक फोटो की बात की गई है, वो फोटो क्या है? बच्चे, चाइल्डहुड में एक फोटोग्राफ की बात की गई है जिसमें वो बीच में है along with her 2 cousins. और सर 2 cousins सर उसके मतलब हाथ में हाथ लगा कि मतलब सर वो एक बीच पे वो खड़े होके कैमरे में मतलब वो कैप्चर फोटो हुआ था. हाँ, वो बीच में है, उसके साथ 2 कजन है, एक का नाम बेटी है, दूसरे का नाम डॉली है, और वो इसलिए हंस रही है क्योंकि शी इज अमेज्ड टू सी द ड्रेस दे हैव वॉर्न इन दैट पर्टिकुलर स्नैपशॉट. ठीक है, बीच ड्रेस उन्होंने पहना है और उसको देख के वो हंस रही है. अब नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट्स? द लाफ इंडिकेट्स दैट द पोएट मदर एंजॉयड रिमेंबरिंग हर चाइल्डहुड डेज. वो अपने चाइल्डहुड डेज को याद कर रही है और उन्हें एंजॉय कर रही है. जब वो छोटी थी, जब वो एक बच्ची थी, जब उसे बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी और लाइफ में किसी भी चीज की चिंता नहीं थी. शी वॉज हैविंग नो टेंशन एंड नो वरीज अबाउट द लाइफ. गॉट इट बच्चे? यस सर. और अगर मैं बात करूं चाइल्डहुड फोटोग्राफ की, तो ये स्नैप किसने क्लिक की थी? Who will answer? स्नैप किसने क्लिक की थी बच्चे? स्नैप उनके अंकल ने क्लिक की थी. Got it? समझ में आ गया सबको? Okay. Yes sir. Moving to the next question. The next question says, what does the phrase her barreled face identity mask means? कौन सी पोइम का क्वेश्चन है ये बच्चे? Sir, laburnum top. Very good. Very good. Excellent. This question is from the laburnum top. Laburnum top एक गोल्ड फिंच और laburnum ट्री की कहानी है. और laburnum top को यहाँ पे उस ट्री को बहुत ही साइलेंट बताया गया है जब तक वहाँ पे गोल्ड फिंच नहीं आता है ना. Yes sir. सो इसमें हर बैरल फेस आइडेंटिटी मास्क का क्या मतलब है? यू कैन स्पीक इन हिंदी टू. सर एक्चुअली जो गोल्ड फिंच होती है सर, उसका जो फेस होता है वो बैड होता है और वो मास्क के जैसे लगता है. इट लुक्स लाइक अ मास्क एंड हर फेस सर्व्स एज हर आइडेंटिटी. मतलब उसका जो फेस है वो मतलब आइडेंटिटी शो करता है. और जब वो उसको अपने फेस पे देखती है एंड वी कैन एट वंस टेल दैट इट इज अ गोल्ड फिंच. मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो भी एक गोल्ड फिंच की तरह ही. नहीं बच्चे, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो. अगर हम पोइम की बात करें तो लबनम टॉप में कौन से सीजन की बात की गई है? सर ऑटम सीजन. ऑटम सीजन. ऑटम सीजन क्या होता है सर? पतझड़ का सर, जब मतलब पत्ते वगैरह गिरते हैं. बिल्कुल, पतझड़ जब पत्ते गिरते हैं. पतझड़ में पत्तों का कलर क्या हो जाता है? सर येलो. येलो कलर का. और जो गोल्ड फिंच है, गोल्ड फिंच की बॉडी भी येलो कलर की है. ठीक है, गोल्ड फिंच जब पत्तों के पीछे जाता है तो उसको कोई पहचान नहीं पाता. वो कब पहचाना जाता है? उसके फेस से, क्योंकि उसके फेस में ब्लैक स्ट्राइप्स हैं जो कि
उसका आइडेंटिटी मास की तरह एक्ट करता है। गॉट इट? See, Yes, sir. the striped face of the goldfinch is its mask. She remains hidden in the thickness and her striped face makes her recognizable. अपने वो चेहरे की वजह से, जिसके ऊपर धारियां हैं, स्ट्राइप्स होती हैं, धारियां, ब्लैक धारियां हैं, उसकी वजह से वो जाना जाता है, जो कि उसके लिए एक आइडेंटिटी मास्क है। क्योंकि उसकी बॉडी का कलर येलो है, लीव्स का कलर Yes, येलो sir. है, तो येलो येलो मिक्स हो गया तो पहचाना नहीं गया। किससे पहचाना गया? फेस से, क्योंकि उसके फेस में स्ट्राइप्स हैं जो कि ब्लैक कलर की हैं। इज इट क्लियर? मोहम्मद इरफान, आपने अनम्यूट किया, कुछ कहना चाहते हैं? यू वांट टू से समथिंग? बच्चे, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज डिस्क्राइब द नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ रेन। कौन सी पोइम का क्वेश्चन है? So the voice of the rain. वेरी गुड, द वॉइस ऑफ द रेन। तो इसमें साइकिल ऑफ रेन क्या है? नेवर Yes, sir. एंडिंग So इसमें साइकिल। water, तो इसमें वाटर साइकिल के बारे में जिक्र किया गया है कि जैसे मतलब कैसे जो ओशन से, बॉटमलेस सी से, मतलब जो वाटर है वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स ऊपर चले जाता है आसमान वेरी में, गुड, फिर मतलब जो प्रोसेसेस वगैरह है फिर से वापस मतलब उसी जमीन पे आ जाता है, फिर से ये सर्कल जो है वो ऐसा ही चलता है, सर्कुलेशन मूवमेंट। बिल्कुल, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है बच्चे। इसमें आप वाटर साइकिल एक्सप्लेन करेंगे जिस तरह से खातिब हुसैन ने बताया। खातिब बच्चे वेरी गुड, मगर इसको जब आप एक्सप्लेन करेंगे इसमें ये लिखेंगे कि इसमें जो वाटर है वो सी से इवेपोरेट होता है, वेपर्स की फॉर्म में चेंज होता है, ऊपर जाता है, क्लाउड्स की फॉर्म में बनता है, कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन होती है, पानी जो है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में नीचे आते हैं और अर्थ को फिर से रिजुविनेट करते हैं। इट गिव लाइफ टू द अर्थ, राइट? एंड दिस इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। गॉट इट? यस सर। बच्चे, बाकी सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, यस सर। तो यहाँ पे हमारे जो पोम्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे यहाँ पे खत्म होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम हॉर्नबिल्स। ठीक है, अब हॉर्नबिल्स की अगर बात करें तो यू विल बी गेटिंग 5 क्वेश्चन एंड यू नीड टू अटेम्प्ट 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कंप्राइजेस ऑफ 3 मार्क्स। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है ये 9 मार्क्स के बनते हैं यहाँ पे। गॉट इट? 5 क्वेश्चन होंगे, 5 में से 3 करने हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। ठीक है बच्चे? So we will be discussing the very first question, that is, why did the grandmother accompany the narrator to his school and what did she do there? जो grandmother थी वो खुशवंत सिंह को, this question has been taken from the portrait of the lady. ठीक है? Yes. खुशवंत सिंह is the narrator. खुशवंत सिंह को स्कूल छोड़ने क्यों जाती थी, उसको स्कूल तक accompany क्यों करती थी और वो वहां पे क्या करती थी? Who will answer? सर एक्चुअली अगर हम बात करेंगे सर ग्रैंड मदर की, जो मतलब नैरेटर की ग्रैंड मदर जो थी, सर वो जो थी मतलब सबसे पहले उसको जब मॉर्निंग में वो उसको वेक अप करती थी, उसके बाद उसको तैयार करती थी, फिर उसके साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि स्कूल जो था वो अटैच था उनके विलेज टेम्पल से। Very और good. जब ऑथर जो स्टडी कर रहा था तो ग्रैंड मदर जो थी मतलब वो स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़ती थी, उसके बाद मतलब टेम्पल्स में बैठती थी आफ्टर स्कूल, फिर उसको वापस ले लाती थी और फिर मतलब रास्ते वगैरह में विलेज डॉग्स को फीड वगैरह भी करवाती थी। ओके बच्चे, एज यू नो खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स थे वो सिटी में शिफ्ट हो गए थे लाइवलीहुड के लिए, तो विलेज में खुशवंत सिंह और उसकी ग्रैंड मदर ही रहती थी। खुशवंत सिंह वॉज टू यंग टू गो टू स्कूल, है ना, वो बहुत छोटे थे स्कूल जाने के लिए, इसलिए ग्रैंड मदर उन्हें अकम्पनी करती थी और वो विलेज टेम्पल में, जैसे कि खातिब ने बताया, विलेज टेम्पल में टाइम स्पेंड करती थी। कैसे? रिलीजियस स्क्रिप्टर्स को पढ़ के। ठीक है, जब तक खुशवंत सिंह स्कूल में पढ़ते थे और उसके बाद स्कूल खत्म होने के बाद वो साथ में आते थे और डॉग्स को, जो स्ट्रे डॉग्स थे, उनको स्टेल चपातीस खिलाते थे। राइट? यू हैव टू यूज द वर्ड स्टेल चपातीस। स्टेल का क्या मतलब होता है? स्टेल का मतलब होता है बासी रोटी। ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Coming to the next question, how did the first disaster strike the ship? This is from We Are Not Afraid to Die. Yes, sir. तो कैसे, मतलब how did the first disaster कैसे strike हुआ?
कौन सर बताएगा? जैसे कि ओमनियस साइलेंस जो थी वो ऑल अराउंड उनके मतलब वहां पे हुई थी, और जो विंड जो थी वो ड्रॉप्ड हो गई थी, स्काई जो था वो इमिडिएटली डार्क दिखने लगा था। वेरी उसके गुड। बाद मतलब जो है सर जैसे लाइटनिंग वगैरह हो रही थी, उसके बाद एक ह्यूज वर्टिकल वेव जो है उनके शिप के पीछे मतलब वो पड़ी, और जिसकी वजह से मतलब ये एक फर्स्ट इंडिकेशन थी डिजास्टर होने की। वेरी गुड। इस चैप्टर का थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूँ। बेसिकली इस चैप्टर में जो नरेटर है वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं प्लाईमाउथ से। यस प्लाईमाउथ सर। कहाँ पे है? यूके में। इंग्लैंड। वेरी गुड, इंग्लैंड में, यूके में, ठीक है। ये एक बोट बनाता है जिसका नाम ये रखता है वे वॉकर। ये वे वॉकर। इसकी वाइफ मैरी, इसका बेटा जॉनथन और मैरी ये वोक स्टार्ट करते हैं। ये प्लाईमाउथ से ऑस्ट्रेलिया जा रहे होते हैं, ठीक है। जब ये अपना वोक स्टार्ट करते हैं तो ये सबसे पहले केप ऑफ टाउन में पहुंचते हैं। केप ऑफ टाउन में ये 2 क्रू मेंबर को हायर करते हैं, जिसमें से एक का नाम है लैरी और दूसरे का नाम है हर्ब। ये इसलिए हार करते हैं क्योंकि नरेटर को पता होता है कि इंडियन ओशन जो है वो डेडलीस्ट ओशन है, वहां पे इनको प्रॉब्लम हो सकती है। ये अपनी जर्नी जो है, जो वोक है, वोक होता है समुद्री यात्रा, ठीक है। अपना वोक स्टार्ट करते हैं और इंडियन ओशन में एंटर करते हैं। इनका न्यू ईयर बहुत अच्छे से निकलता है, मगर 2 जनवरी को इनको ट्रबल महसूस होता है। तो जिस तरह से खातिब ने बताया कि शाम के टाइम पे हवा चलनी बंद हो जाती है, एकदम से जो मौसम है वो बदल जाता है, डार्क क्लाउड्स आते हैं और वर्टिकल वेव जो है वो इनको हिट करती है, जो हिट होने के बाद नरेटर को डीबोर्ड कर देती है, मतलब कि उसको शिप से बाहर निकाल देती है। somehow he managed to come back to the ship, और जब वो शिप में आता है और देखता है उसका लेफ्ट रिब जो है वो टूट गया होता है, उसके मुंह में ब्लड होता है, और कहाँ पे इंजरी होती है? और हेड में उसे इंजरी होती है, राइट? यस सर। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, why was the narrator disappointed with Darchan? ये आज के ऑफलाइन क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आया है और इवनिंग क्लासेस में भी मैं ये रिपीट कर रहा हूँ आपके साथ। क्यों नरेटर डिसअपॉइंटेड था डार्चन में? उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से भी, और वहां पर सर थोड़ा सा गार्बेज वगैरह ऑल अराउंड वगैरह सराउंडिंग में थे। गार्बेज वाज नॉट द रीजन। सर एक्चुअली जब वो ऑथर जो था उसने मतलब डार्चन के बारे में पहले सुना था कि मतलब वो एक मतलब रिलीजियस प्लेस है, मतलब कैलाश कोराकेरी वो गया था, लेकिन बाद में जब मतलब वो गया वहां पे तो वहां पे मतलब कोई भी ऐसे पिलग्रिम्स वगैरह नहीं थे। वेरी गुड। तो उसने कोई भी पिलग्रिम वगैरह नहीं वहां पे ढूंढा था, तो उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब डिसअपॉइंट उसी बात ने की थी कि वहां पे कोई पिलग्रिम नहीं था, और वो जो था वो कोई भी पिलग्रिमेज ट्रेल के बारे में नहीं जानता था, और उसके बाद रास्ते में भी उसको मतलब स्नो वगैरह हो गई थी, जिसकी वजह से वो इल भी मतलब उसकी हेल्थ वगैरह भी खराब हो गया था, तो उसको थोड़ा सा वो डिसअपॉइंटमेंट फील हुई थी। खातिब एक ही पॉइंट ठीक है, वहां पे पिलग्रिम्स नहीं थे, ठीक है। स्नो कब हुई थी? इसकी 3 बातें याद रखनी है, इस क्वेश्चन की 3 बातें हमेशा याद रखना। जिस दिन निक डार्चन पहुंचता है, डार्चन एक हाई ऑल्टीट्यूड में सिचुएटेड जगह है, ठीक है। ऑर्थर जो है उसके नॉस्ट्रल्स ब्लॉक हो जाते हैं। नॉस्ट्रल ब्लॉक जब होते हैं तो वो हर्बल टी लेता है, मगर उससे कोई रिलीफ नहीं मिलता है, ठीक है। जब वो रात को सोने लगता है, लेटता है, तो ही फील्स ब्रेथलेसनेस, उसे ब्रेथलेसनेस होती है, वो उठ के बैठ जाता है, तो ही फील्स रिलीफ, ठीक है। वो दोबारा लेटता है, फिर से ब्रेथलेसनेस होती है, फिर वो उठ के बैठता है और वो सोचता है कि ही विल नॉट स्लीप टुडे, बिकॉज इफ ही विल स्लीप टुडे ही वोंट बी एबल टू गेट अप द नेक्स्ट मॉर्निंग। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, सीतन उसको डार्चन में छोड़ के चले जाता है। Yes, so sir. Arthur is the one who is comfortable with English as a language, and people of Darchan, they were lacking in English speaking. They don't know English language, so it was difficult for this Nick to communicate there, ठीक है। और तीसरी बात, वो जिस टाइम पे वहां पे पहुंचा होता है वो ऑफ सीजन होता है, तो वहां पे पिलग्रिमेज भी नहीं होती है। तो एज पर द मार्क्स यू कैन राइट दिस क्वेश्चन। ये 3 पॉइंट्स हमेशा याद रखना। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर, क्लियर। सूफिया क्लियर है बच्चे? यस सर। Okay. Coming to the next question, Tut's body was buried along with gilded treasure. Give reason. क्यों उसकी बॉडी को ट्रेजर्स के साथ कॉफिन में रखा गया था? What was the reason? It is from the Discovering Tut. पढ़ा है? यस सर। Yes, Sufyan.
क्यों रखा था बच्चे? सर उसको ट्रेजर में इसलिए रखा था क्योंकि सर पुराने जमाने के मानना था कि हम्म। सर पुराने जमाने के लोगों का मानना था कि जो भी मतलब रिच फैमिली से या मतलब के जो इजिप्टियन फेरोन है, हम्म। इनको मतलब क्या बोलते हैं, जब भी इनकी डेथ होगी, इनका मतलब दोबारा से ये जिंदा होंगे, उस टाइम इनके पास जो भी खाने की जो जरूरत है वगैरह वो सारा कुछ उसमें डाला हुआ था और ट्रेजर भी डाला था कि ये इतने अमीर होंगे। बच्चे यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी। ये सर इजिप्शियंस जो थे दे यूज्ड टू बिलीव ये जो जितना भी सामान है, जितना भी ट्रेजर है, द ट्रेजर विल बी हेल्पिंग देम इन आफ्टर डेथ जर्नी। मरने के बाद जो आफ्टर डेथ जर्नी है उसमें ये हेल्प करेगा। ठीक है? यस सर। ओके, यस सर। अगेन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम? कौन बताएगा? फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड सिस्टम। वेरी गुड। एक था फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड। ये 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स आपको याद रखने हैं और आपको फ्रेम करके देने हैं। ठीक है? फिशरीज में क्या हुआ था? मतलब फॉर मोर प्रोटीन इनटेक ओवर फिशिंग हो रही है। यस सर। फॉर हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो फॉरेस्ट में क्या है? डिफॉरेस्टेशन हो रही है। ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड्स जो हैं ये डेजर्ट और वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो रही हैं। यस सर। ओके, यस सर। समझ गए बच्चे? यस सर। ओके, सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। Describe how Mrs. Pearson is treated by her own child and husband. How does she set them right? किस तरह से इसको पियर्सन को ट्रीट किया जाता था? सर सारे उसको यूज करते थे एज अ, मतलब कि ये नहीं मानते थे कि वो मदर है उनके घर में, तो वो हाल ये बोलते थे एक ऐसे वर्कर है जो हमारे लिए काम करती है। 6 नंबर का क्वेश्चन ऐसे लिखोगे सूफियान? नो सर, असल कैसे ओवरव्यू बोलूं। सी, अगर हम बात करें पियर्सन की, मिसेस पियर्सन वॉज ए वेरी लविंग एंड केयरिंग मदर। ठीक है? नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन देयर हाउस? जो इनकी फैमिली मेंबर्स हैं, जिसमें डॉरिस है, सारल है, जॉर्ज पियर्सन है, वो इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दे आर ट्रीटिंग मिसेस पियर्सन एज द सर्वेंट, राइट? सभी काम करवाते हैं एंड शी इज वर्किंग सो टायरलेसली, शी इज वर्किंग सो हार्ड विदाउट टेकिंग एन ऑफ। शी इज वर्किंग 24/7 and available 24/7 for her family. But the sad and unfortunate part is that she is not getting a single respect, a kind word from her family. अब क्या होता है, इनके पड़ोस में, नेबर में एक और फीमेल रहती है, वो है मिसेस फिट्जजेराल्ड। वन डे दे बोथ वर सिटिंग। फिट्जजेराल्ड जो है वो मैजिशियन है जिसने ई से मैजिक सीखा है। तो फिट्जजेराल्ड कहते हैं कि आई हैव ए आइडिया, आई कैन सेट योर फैमिली। ठीक है? आई विल सेटिंग योर फैमिली एंड डेफिनेटली दे विल बी रिस्पेक्टिंग यू। दे विल नॉट इवन डेयर टू ट्रीट यू एज दे आर ट्रीटिंग यू प्रेजेंटली। तो ये कहते हैं कि कैसे? तो कहते हैं कि वी नीड टू स्वैप द पर्सनालिटी। अब बच्चे यहाँ पे गलती सभी करते हैं, आप लिखते हो सोल स्वैपिंग। सोल स्वैपिंग नहीं है, पर्सनालिटी स्वैपिंग है। क्या है बच्चे? क्लास पर्सनालिटी स्वैपिंग। अब ये आपस में पर्सनालिटी स्वैप करते हैं और जो फिट्जजेराल्ड है उसकी पर्सनालिटी मिसेस पियर्सन वाली हो जाती है। ठीक है? वो मिसेस पियर्सन में आ जाती है और मिसेस पियर्सन जो है वो फिट्जजेराल्ड बन जाती है। नाउ मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है वो पियर्सन की बॉडी में आके पर्सनालिटी स्वैप करके अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को सेट करती है, राइट? बेसिकली उसकी बेटी है डॉरिस, जो शाम को येलो ड्रेस पहन के चार्ली स्पेंसर से मिलने के लिए जाना चाहती है। वो आके पूछती है कि हैव यू आयरन माई ड्रेस? तो वो कहती है नो। बेटा आता है, बेटा कहता है कि आई वॉन्ट समथिंग टू ईट एज आई हैव टू गो टू सम वेयर इन द इवनिंग। तो वो कहती है कुक योर सेल्फ। जॉर्ज पियर्सन आता है, जॉर्ज पियर्सन कहता है कि आज मैं क्लब जा रहा हूँ, मैं चाय नहीं पीऊँगा।
तो वो कहती है कि मैंने चाय बनाई भी नहीं है। तो जॉर्ज पियर्सन की ईगो हर्ट हो जाती है। देन शी टेल्स के एवरीवन कॉल्स यू ओम्पी पोम्पी, राइट। तो इस तरह से वो फैमिली को सेट करती है और फिर से ये अपने ये पर्सनालिटी स्वैप करते हैं, और पर्सनालिटी स्वैप करने के बाद now the family is ready and the family has realized their mistake and they start respecting Mrs. Pearson. इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत बच्चे? Any problem in this question now? No sir. No sir. Okay. इसके और में एक और क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आज ये क्वेश्चन आया था मगर द लैंग्वेज वाज चेंज्ड। द क्वेश्चन सेज द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स। ठीक है, स्टोरी को प्री वॉर, वॉर से पहले और वॉर के बाद के समय में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। व्हाट हार्डशिप डू यू थिंक द गर्ल अंडरवेंट ड्यूरिंग दिस टाइम? आपको क्या लगता है कौन कौन सी मुसीबतों का सामना नरेटर को करना पड़ा एज ए यंग गर्ल इन इस दौरान? हु विल आंसर? बच्चे सबसे पहले बात, वॉर क्या करता है? जब वॉर होता है तो क्या होता है? सर डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। वेरी गुड, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, वॉर से पहले सब कुछ सही था। ठीक है, वॉर से पहले नरेटर का अपना खुद का घर था, वो अपनी मदर के साथ आराम से खुशी से रह रही थी, उनको किसी भी चीज की इनसिक्योरिटी नहीं थी। ठीक है, दे वर हैविंग देयर ओन वैल्यूएबल्स थिंग्स। मगर जैसे वॉर हुआ, दे हैव टू लीव देयर ओन हाउस, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपने सामान को किसी और को दे दिया, मिसेस डॉर्लिंग को दे दिया, अपने खुद की बिलोंगिंग्स को। ठीक है, दे हैव टू मूव टू अनदर प्लेस, दे हैव टू लिव लाइक रिफ्यूजीज, दे हैव टू लिव इन अ फेयर, डर में कि दे कैन बी अटैक्ड बाय जर्मन्स एनी टाइम, राइट। और द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ वर नॉट अवेलेबल जब ये ड्यूरिंग दी वॉर टाइम्स। ठीक है, and she lost her mother and was left alone in the cruel world. The war has taken away her mother, the person whom she loved the most. ठीक है, war से पहले she was rich, now she, after war, she is not rich, she is living in a rented apartment. Moreover, they left behind all the people, she lost her friends, and when she went back to Mrs. Darling after the war was over, Mrs. Darling refused to recognize her. समझ में आया बच्चे? Yes sir. Is everything, each and every point is clear to you all? Yes sir. Okay. So आज के पेपर में ये क्वेश्चन आया था शायद से। All the dangers and disaster could be confronted with patience, courage and determination. These were the basic virtues which enable the writer, his family, crew members to reach safely to the island. Describe how the writer and his family exhibit these virtues in crisis and conclude with brief comment as to how these virtues are essential for the life. कौन समझाएगा ये क्वेश्चन सिंपल लैंग्वेज में? Who will make me understand this question बच्चे? क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का हिंदी में? इस क्वेश्चन का ये मतलब हुआ कि चाहे कितनी भी मुसीबत हो, राइट, मगर अगर आप में पेशेंस है, आपके अंदर करेज है, आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, तो आप सभी मुसीबतों से बाहर निकल सकते हो। दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम विच चैप्टर? कौन से चैप्टर से क्वेश्चन लिया बच्चे? वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। इस चैप्टर में वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई में किस तरह से द फैमिली शोड टुगेदरनेस, दे वर्कड एज अ टीम with patient courage and determination, they came out of a very difficult situation. कैसे निकले वो बाहर, कौन बताएगा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि नरेटर को पहले जब सब वेव ने उसको उठा के सर समुद्र में फेंक दिया, उसके बाद जब वो ऊपर आया तो अपनी फैमिली के पास जब वो जाता है तब वो देखता है कि जो उसकी बेटी सूजन थी उसको सर काफी चोटें आई थी। पर सर सूजन सर काफी ब्रेवली एक्ट करती है, वो बताती है कि और फादर को बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। सर हिसाब से क्योंकि जब उसके हम एज देखें तो सर वो एज के हिसाब से काफी करेज वाली बात थी कि वो अपनी चोटों को सर अपने फादर को बता नहीं रही। यस सर।
सर जैसे कि अब उनका बेटा भी वो भी एज में काफी छोटा था, पर वो अपने फादर को ये बोलता कि पापा हम ठीक हैं जब हम सब इकट्ठे हैं। वेरी गुड। एंड सर जो उनकी वाइफ थी वो उनको कहते हैं कि वो उनको हमेशा वो कर रहे थे कि हम कर सकते हैं, हम बच जाएंगे वगैरह वगैरह। हम्म। तो इस हिसाब से देखें तो सर फैमिली ने जो नरेटर थे उनको काफी वो किया कि वो उस हिसाब से काम करें कि वो उनको बचाने की अपनी एंड तक कोशिश करें। बिल्कुल। बेसिकली जब ये तूफान इनको जो 2 जनवरी में जो इन्होंने ट्रबल देखा, उसके बाद नरेटर वॉज क्वाइट श्योर कि अगर एक और तूफान ऐसा आएगा देन दे विल ऑल डाई, है ना, क्योंकि वेव वॉकर की जो अंदर पानी घुस गया था और वो काफ़ी ज़्यादा। आई रिक्वेस्ट यू टू पुट योर स्पीकर ऑन म्यूट मोड, देयर इज सम साउंड विच इज कमिंग फ्रॉम बैक, ओके, जिससे वेव वॉकर डैमेज हो गई थी थोड़ी, राइट। तो जब नरेटर वापस जाता है, मैरी व्हील संभालती है एंड मैरी उसको बताती है कि पानी अंदर घुस रहा है, और वो जाता है और देखता है हैरी और जो हर्ब हैं वो मोटर से पानी को पंप आउट कर रहे हैं, राइट। मगर जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स है उनके अंदर सॉइल जम गई है। उसे याद आता है कि मैनुअल मोटर्स भी पड़ी हैं, और जब वो मैनुअल मोटर्स को लेने के लिए जा रहा होता है, उनकी नज़र पड़ती है सुजैन पे। सुजैन को वो पूछता है कि हाउ आर यू। सुजैन को लगी होती है बट शी डिडंट डिस्क्लोज, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि इफ शी विल टेल हर फादर कि शी इज इंजर्ड देन हर फादर माइट गेट वरीड एंड ही माइट गेट डिविएटेड फ्रॉम द वर्क विच ही इज गोइंग टू परफॉर्म एक्चुअली, राइट। तो उसके बाद जब सब कुछ ठीक होता है तो जॉनथन मोटिवेट करता है फादर, वी डोंट हैव टू वरी इफ़ यू ऑल टुगेदर, राइट। उसके बाद जो बेटी है उसको कैरी कैचर दिखाती है, मोटिवेट करती है। मदर भी कहती है कि नहीं, यू कैन डू इट, वी ऑल विल सेव आवर सेल्फ, और वो डिसीजन लेता है। और कलेक्टिवली अगर हर्ब की बात करें, ये जो क्रू मैन थे लैरी और हर्ब, ये भी मिलकर काम करते हैं एज ए टीम वर्क एंड दे टुगेदर सेव देमसेल्व्स। Who is on unmute? It is disturbing me. बच्चे kindly put yourself on mute. Okay. तो ये बेसिकली जो नरेटर है वो शिप को मोड़ता है ले एम्स्टरडैम की तरफ, और फाइनली वो ले एम्स्टरडैम में पहुंचते हैं, और उनकी डिटर्मिनेशन, उनका पेशेंस, उनकी करेज along with the teamwork help them to get themselves out of this unfortunate situation. Got it बच्चे? यस सर। क्लियर है सबको? Yes. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके साथ एक और क्वेश्चन है। द क्वेश्चन सेज वुड यू एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज ए पर्सन स्ट्रांग इन कैरेक्टर? क्या आपको लगता है जो ऑथर की ग्रैंडमदर थी वो कैरेक्टर में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी? इफ यस गिव इंस्टेंस दैट शो दिस। कौन सी ऐसी बातें चैप्टर में जिनसे ये जाहिर होता है कि खुशवंत सिंह की जो ग्रैंडमदर थी शी वाज वेरी स्ट्रांग इन कैरेक्टर? हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? सर बेसिकली अगर हम बात करें, जैसे कि सर वो जब वो मूव हुए थे सर सिटी में, तो सर जब ग्रैंडमदर को पता चला कि नरेटर को सर वो पढ़ाया जा रहा है, जो वेस्टर्न हमारा कल्चर है वो पढ़ाया जा रहा है, तो वो काफी डिसअपॉइंट हुई। उन्हें लगा कि ये हमें नहीं पढ़ना चाहिए, जो हमारी अपनी संस्कृति हमें उसी को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, उसने बहुत स्ट्रांगली बोला इस बात को। वेरी गुड, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड जो मुझे पता है सर, उसके हिसाब से मतलब जब उसको पता चला कि वो म्यूजिक सीख रहा है तो उसे ये भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ग्रैंडमदर के हिसाब से जो म्यूजिक है सर वो लो क्लास के पीपल सीखते थे। वेरी गुड, सेकंड पॉइंट। यस सर। और यस सर, मुझे अभी ये दो ही याद। ओके, उसके बाद जब नरेटर अपना पर्सनल रूम, प्राइवेट रूम में शिफ्ट करता है जब वो यूनिवर्सिटी में पहुंचता है, राइट। पहले क्या था, दो देवर लिविंग इन ए सेम रूम, वो एक दूसरे को देख पाते थे, दो देवर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, है ना। बट जब यूनिवर्सिटी में नरेटर मूव कर जाता है एक पर्सनल रूम में, वहां पे वो कुछ कहती नहीं है, शी कीप्स हर सेल्फ ऑन म्यूट, राइट। वो अपना टाइम स्पिन व्हील को स्पिन करने में निकालती है, प्रेयर्स को चांट करने में निकालती है, वो बर्ड्स को ब्रेड क्रम्स देने में निकालती है, राइट। बट शी नेवर एक्सप्रेसेस दैट ग्रीफ, वो दुख नहीं बताती। दैट मीन्स शी वॉज वेरी स्ट्रांग लेडी। दूसरी बात, जब उसे पता लगता है कि नरेटर 5 साल के बाद अब्रॉड से वापस आ रहे हैं,
तो आउट ऑफ जॉय शी सिंग्स वॉरियर सॉन्ग्स फॉर आवर्स विदाउट स्टॉपिंग, ठीक है। उसकी फैमिली उसको बहुत बार कहती है कि नाउ यू शुड स्टॉप, यू माइट फॉल इल, बट शी एक्सप्रेसेस हर जॉय, शी डजंट लिसन टू हर फैमिली, ठीक है। इसका मतलब वो स्ट्रांग है, ठीक है। और जब उसका लास्ट टाइम है, व्हेन शी इज अबाउट टू डाई, शी टेल्स एवरीवन के आई हैव वेस्टेड माई टाइम टॉकिंग टू यू, नाउ आई वॉन्ट टू स्पेंड माई टाइम इन प्रेयर्स ओनली, और वो मर जाती है। शी वॉज वेरी स्ट्रांग, she was a very strong character because she stick to things what she has said and it has been reflected in the chapter itself. समझ में आया बच्चे? यस सर। क्लियर है? Okay. Coming to section B. Now we will be discussing section B. Section C is over. Section B में sorry, there is a question. You are the culture secretary of your school, right? Your school is going to organize a cultural evening in school to collect funds for the slum children. Prepare a poster to be displayed in different areas of the city. Entry is by ticket. आज के पेपर में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ऑफलाइन में। तो बच्चे सबसे पहले यू हैव टू कीप योर ब्रेन एक्टिव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये क्या चीज है? ये पोस्टर है। क्लास सुन रहे हो सभी? बिकॉज मैनी ऑफ यू केम टू मी के सर इसमें करना क्या है। तो बच्चे क्वेश्चन में तो सामने लिखा है प्रिपेयर है पोस्टर। अब आप कौन हो? आप सेक्रेटरी हो। कौन से स्कूल के? यू डोंट हैव टू राइट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। आप एसपी स्मार्ट स्कूल नहीं लिखोगे। आप अपार्ट फ्रॉम एसपी स्मार्ट स्कूल कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हो। लिख दो ABN पब्लिक स्कूल, ठीक है बच्चे। इफ यू विल यूज योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, देयर इज ए हाई चांस, देयर इज नॉट ए हाई चांस, देयर इज ए कंफर्म चांस दैट यू विल गेट ब्लैक लिस्टेड। गॉट इट बच्चे? इज दिस क्लियर? ओके। आपका स्कूल क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है? ए कल्चरल इवनिंग। क्यों ऑर्गेनाइज कर रहा है? बिकॉज ये स्कूल वांट टू कलेक्ट फंड्स, पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। किसके लिए? स्लम चिल्ड्रन। स्लम चिल्ड्रन क्या होते हैं? जो स्लम्स में रहते हैं। स्लम्स क्या होते हैं? झुग्गी झोंपड़ियां, ठीक है। और जो एंट्री रहेगी इस कल्चरल इवनिंग की, वो टिकट्स रहेंगी जो कि नॉमिनल होगा। गॉट इट? तो आपके स्कूल का नाम क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हो, क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कब ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कौन होगा? बच्चे जब ऐसा क्वेश्चन आए सिंपली अप्लाई 5 Ws। 5 Ws का मतलब है व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई एंड हु। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट, क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हो? एक कल्चरल इवनिंग इन स्कूल। कब ऑर्गेनाइज कर रहे हो? 2 दिसंबर को। कहां ऑर्गेनाइज कर रहे हो? स्कूल के ऑडिटोरियम में, स्कूल के प्लेग्राउंड में। क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हो? बिकॉज यू वॉन्ट टू रेज फंड्स फॉर स्लम चिल्ड्रन। कौन आएगा? चीफ गेस्ट आएगा, ठीक है। चीफ गेस्ट कौन है? ऑनरेबल LG ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा, ठीक है। और क्या है? और जो भी पार्टिसिपेट करेगा, जो भी एंट्री करेगा, वो टिकट लेके एंट्री करेगा। टिकट का प्राइस, राइट। अट्रैक्शंस क्या क्या हो सकती हैं? सो यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। 5 Ws यूज करो, इंफॉर्मेशन फेच करो और अच्छा सा पोस्टर बनाओ। एंड पोस्टर हैज टू बी फ्रेम्ड इन ए बॉक्स। अब बॉक्स किससे बनाने? पेन से और स्केल से। बच्चे यूज ऑफ पेंसिल इज प्रोहिबिटेड। गलती से भी पेंसिल का इस्तेमाल मत करना इंग्लिश के पेपर में। आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश एज एन सब्जेक्ट स्पेसिफिकली। बच्चे क्लियर है पोस्टर? यस सर। 5 W रूल क्लियर है? कहीं पे भी फंसो 5 W रूल लगा दो। बच्चे क्लियर है 5 W? Yes, sir. यस सर। Okay. Come to next question. The next question says, इसके ऑप्शन में your young sister is a student of class 10th. आपकी जो छोटी बहन है वो 10th क्लास में पढ़ रही है, ठीक है। She broke her foot accidentally. उसने अपना पाँव तोड़ दिया accidentally, ठीक है। And hence cannot go to school. और वो स्कूल नहीं जा सकती। कितनी देर के लिए नहीं जा सकती? 1 महीने के लिए नहीं जा सकती।
ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट। अब हमें पता लगा कि ये कीवर्ड क्या है, एडवर्टीजमेंट। हमें एक एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करनी है लोकल न्यूज़पेपर के लिए। क्यों ड्राफ्ट करनी है? फॉर ए टीचर फॉर टीचिंग साइंस एंड मैथ्स। किसको पढ़ाना है? आपकी बहन को पढ़ाना है घर पे ही। घर पे ही क्यों पढ़ाना है? क्योंकि अपनी लात तोड़ बैठी है वो एक्सीडेंटली। क्वेश्चन क्लियर है बच्चे? यस सर। ठीक है, तो आपको चाहिए, ठीक है, तो आप वांटेड, आप सबसे पहले बॉक्स बनाओगे और हेडिंग लिखोगे। हेडिंग में क्या आएगा? वांटेड मैथ एंड साइंस होम ट्यूटर। क्यों होम ट्यूटर लिखा आपने? क्योंकि आप अपनी बहन को घर में ही पढ़ाना चाहते हो, जो कि क्वेश्चन में ही लिखा है। क्वेश्चन समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझोगे, आपके लिए आंसर करना वुड बी वेरी टफ। सिंपल, वांटेड हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस पीजीटी हु कैन टीच साइंस एंड मैथ टू ए गर्ल स्टडिंग इन क्लास 10th। क्लास 10th कहां पे दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया है, ये दिया है सामने। ट्यूशन फीस नेगोशिएबल। ट्यूशन फी जो है आप उसमें नेगोशिएट कर सकते हो। फॉर द राइट कैंडिडेट लिखो। अगर डिजर्विंग एंड एक्सपीरियंस्ड में आपको प्रॉब्लम होती है तो राइट लिख दो। अप्लाई विद योर बायोडाटा। अप्लाई कहां करेगा वो? अपना फोन नंबर दोगे, एड्रेस दोगे, ईमेल दोगे, तभी तो वो आपको कॉन्टैक्ट कर पाएगा। गॉट इट? यस सर। बच्चे कोई Yes, प्रॉब्लम? बच्चे एडवर्टीजमेंट में कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रोड लीडिंग टू योर स्कूल इज वेरी कंजेस्टेड एंड फुल ऑफ पॉट होल्स। तो यहाँ पे दो चीजें हमें दिखाई दी। जो रोड हमारे स्कूल की तरफ जा रही है, ठीक है, वो कंजेस्टेड है, मतलब कि वो टाइट है, और उसमें पॉट होल्स हैं बहुत सारे। अब यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय पॉट होल्स? बच्चे ओपन कैमरास। आई डोंट वांट यू टू स्विच ऑफ द कैमरास। पॉट होल्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय पॉट होल्स बच्चे? सर जो रोड्स में आते हैं सर। क्या आते हैं? खड्डे। हाँ सर वही है ना, खड्डे होते हैं पॉट होल्स, ठीक है। पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आर ऑफन कॉट इन ट्रैफिक। जगह तंग होने के कारण और पॉट होल्स होने के कारण जो बच्चे और उनके माँ बाप है वो हमेशा जाम में फंसते हैं। आपको लेटर लिखना है। किसको लिखना है? एडिटर को। कौन सी न्यूज़पेपर का एडिटर? न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया है, इट्स अ लीडिंग न्यूज़पेपर। बच्चे ओपन द कैमरास, ओपन द कैमरास एवरीवन। इट्स अ लीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। क्यों लिखना है? आप गवर्नमेंट का अटेंशन खींचना चाहते हो कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और कंडीशन को, जो रोड की कंडीशंस हैं, उसको ठीक किया जाए। तो लेटर स्टार्ट होती है सेंडर एड्रेस से, अपना एड्रेस, ठीक है। डेट का फॉर्मेट यही है बच्चे, नो डी, इस तरह से आएगा। रिसीवर एड्रेस तो क्वेश्चन में दिए। एडिटर, द एडिटर कौन से न्यूज़पेपर का? न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया तो द टाइम्स ऑफ जम्मू, ठीक है। अगेन पिन कोड, बच्चे पिन कोड लिखना इज मैंडेटरी। सब्जेक्ट क्या है? मेंटेनेंस ऑफ रोड। तो रिस्पेक्टेड सर, प्लीज कीप these lines in your mind whenever you will be starting a letter which is typically would be written to the editor। उसमें यही लाइंस होनी चाहिए। Through the column of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of government to a problem, and the problem is congested road to my school which is full of potholes, ठीक है। अब इसमें क्या लिख सकते हो? जो शॉपकीपर्स हैं उन्होंने जगह को एनक्रोच किया हुआ है, बहुत ही तंग जगह है। यहाँ पे 2 स्कूल पढ़ते हैं, तो 2 स्कूल में जो बच्चे हैं उनकी स्ट्रेंथ 5000 के प्लस के हैं। तो सुबह सुबह एक ही टाइम है स्कूल का, उसमें बहुत सारा रश हो जाता है, हम स्कूल लेट पहुँचते हैं, हमारे लेक्चर्स मिस हो जाते हैं। तो वी वांट गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट दिस। They should free the encroached land so the road can be make broader होने के बाद it would be helpful for us to reach the school on time। Kanish Uppal, you want to say something? Kanish Uppal बच्चे, you are raising your hand, you want to say something, please feel free to ask। बच्चे इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? जब इसको क्लोज करोगे, थैंक यू, after thanking you have to leave a line, yours faithfully Ramesh, principal। हालांकि क्वेश्चन में दिया नहीं है कि you are writing as a principal, but you can write as a principal if it is not given in the question।
और यू कैन राइट एज ए इंडिविजुअल टू। बच्चे कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? बच्चे ओपन द कैमरास, open the cameras, open the camera. I want to see you all. When I see you, it gives me happiness, right? I feel happy. Okay, next question. Next question says you are the librarian of the school. आप अपने स्कूल के लाइब्रेरियन हैं, as desired and ordered by the principal. जैसे कि प्रिंसिपल चाहते हैं और उन्होंने ऑर्डर किया है, आपको एक लेटर लिखना है। किसको लिखना है? मैसर यूनिक बुक शॉप को। क्यों लिखना है? बिकॉज यू आर ऑर्डरिंग फॉर द सप्लाई। आप ऑर्डर कर रहे हैं इंग्लिश बुक्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बुक्स विच हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय बोस फॉर द स्कूल लाइब्रेरी। ये कौन सी लेटर है? ये बिजनेस लेटर है। बिजनेस लेटर में कौन सा टाइप का लेटर है? ये ऑर्डरिंग की लेटर है, ठीक है। तो फॉर्मेट दोनों का सेम है। अब आप एज ए लाइब्रेरियन लिख रहे हैं, तो अब लाइब्रेरियन कहाँ पे होता है? हु विल आंसर? क्या किसी मोहल्ले में लाइब्रेरियन होता है? इसी नो दुकान? सर। फिर लाइब्रेरियन कहाँ होता है? सर लाइब्रेरी में होता है, लाइब्रेरी कहाँ होती है? मतलब लाइब्रेरी में जो सर सीट वगैरह लगाते हैं। ओके, अब लाइब्रेरी जो है वो इंडिविजुअल प्राइवेट लाइब्रेरी भी होती है, स्कूल्स में भी होती है। बट यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन में? यू आर द लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल। स्कूल स्कूल का लाइब्रेरी। वेरी गुड। तो यहाँ पे एड्रेस किसका आएगा? सेंटर एड्रेस में स्कूल स्कूल का। का, ठीक है। स्कूल का एड्रेस, लीव अ लाइन, डेट, लीव अ लाइन। ये लेटर किसको लिख रहे हो? मैसेज यूनिक बुक शॉप, ठीक है। इसके मैनेजर का नाम डालो, यूनिक बुक शॉप डालो, काली बड़ी कठुआ, पिन कोड आ गया। ये आ गया आपका रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर एड्रेस, ये ऊपर वाला आ गया आपका सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? ऑर्डरिंग ऑफ बुक्स या ऑर्डर फॉर बुक्स। तो सर मैम, आई वुड लाइक टू ऑर्डर द बिलो मेंशन्ड बुक्स। और जो आप ऑर्डर करोगे वो आप इस तरह से टैबुलर फॉर्म में बनाओगे, टेबल में बनाओगे, टेबल फॉर्म। दिस इज एल, ठीक है, टेबल फॉर्म। ये शहराज अहमद। सर आप ये पीडीएफ डालोगे ग्रुप में? बच्चे वीडियो डालूंगा मैं पूरी ग्रुप में। वाई ओवर इट? थैंक यू सर। ओके, आप ये लेटर जब ऑर्डर लिस्ट बनाओगे तो ये टैबुलर फॉर्म में होनी चाहिए। देखो, जब भी ऑर्डरिंग की लेटर होगी आपने 3 बातों का ध्यान देना है। एक, आपकी ऑर्डर लिस्ट होनी चाहिए। दूसरा, आप डिस्काउंट मांगोगे, ठीक है। डिस्काउंट के साथ साथ आप मोड ऑफ पेमेंट पूछोगे, या आप खुद भी बता सकते हो द मोड ऑफ पेमेंट वुड बी ऑन सीओडी बेसिस। सीओडी क्या होता है? कैश ऑन डिलीवरी। और आप लिख सकते हो एज पर योर कंफर्टेबल कि 50% ऑफ द पेमेंट वुड बी मेड इन एडवांस थ्रू गूगल पे एंड रेस्ट अमाउंट एंड रिमेनिंग अमाउंट वुड बी पेड ऑन द डिलीवरी इटसेल्फ। शराज, यू वांट टू से समथिंग अगेन? नो सर। ओके, अब एक और बात का जो आपने ध्यान देना है, यू हैव टू मेंशन इफ द ऑर्डर इज फाउंड फॉल्टी और डैमेज्ड, ठीक है। अगर आपका ऑर्डर जो है वो फॉल्टी या फिर डैमेज्ड आपको मिलता है, देन नो पेमेंट वुड बी मेड अगेंस्ट इट एंड इट विल बी रिटर्न बैक ऑन इमीडिएट बेसिस। समझ गए बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, इसके बाद यू हैव टू लीव अ लाइन। थैंक यू, थैंक यू के बाद लीव अ लाइन। योर्स फेथफुली एके लाइब्रेरियन। एक चीज हमेशा याद रखिए, सबसे ऊपर नेम आता है, नेम के बाद डेजिग्नेशन आता है। आप एक कॉमन गलती करते हैं जिसमें आप डेजिग्नेशन पहले लिखते हैं और नेम बाद में लिखते हैं। दिस इज रॉन्ग। प्लीज कीप इट इन योर माइंड कि सबसे पहले आप नेम लिखें, उसके बाद डेजिग्नेशन लिखें। गॉट इट? लेटर्स में भी, हर चीज में बच्चे, दिस इज ए यूनिवर्सल रूल। आपको नोटिस में मैंने देखा है, जब भी मैंने नोटिस चेक किए हैं, आप ऊपर लिखते हो प्रेसिडेंट और नीचे नाम राम। दिस इज रॉन्ग, यस सर। ठीक है। यस सर। ऊपर आएगा नाम, फॉर एग्जाम्पल रहीम, नीचे प्रेसिडेंट। दिस इज राइट वे। यस। गॉट इट? ये गलती मत करना आप। यस सर। ओके,
ओके कमिंग टू द ईमेल पार्ट। अब ईमेल क्या है? राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन बिकमिंग द कैप्टन ऑफ द स्कूल क्रिकेट टीम। आपको एक ईमेल लिखना है अपने दोस्त को। क्यों लिखना है? उसे कंग्रेचुलेट करना है। क्यों कंग्रेचुलेट करना है? क्योंकि वो स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन बन गया है। ठीक है। एज कन्वेड बाय द नोटिस ऑन ए स्कूल नोटिस बोर्ड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफिस। आपको कैसे पता लगा आपका दोस्त कैप्टन बना है? क्योंकि आपने प्रिंसिपल ऑफिस ने जो इशू किया है नोटिस बोर्ड पे नोटिस, आपने उससे ये देखा है। अब आप उसको किस तरह से ईमेल लिखोगे? बच्चे ईमेल शॉर्ट आएगा। आपके सिलेबस में सिर्फ पर्सनल ईमेल्स हैं, राइट। ईमेल का एक ही फंडा है, इसका फॉर्मेट सही होना चाहिए, इसका सीक्वेंस सही होना चाहिए, इसी तरह से होना चाहिए जिस तरह से मैंने आपको शो किया है। अगर आपका सीक्वेंस गलत होगा यू विल लूज मार्क्स। तो एक फॉर्मूला याद रखो, FDTCS, F फ्रॉम D डेट, T टू जिसको भेज रहे हो, CC। इसमें कुछ नहीं लिखना है, इसे ब्लैंक छोड़ना है क्योंकि CC ऑफिशियल ईमेल्स में यूज होते हैं, पर्सनल ईमेल्स में नहीं होते। और सब्जेक्ट जहां पे डेट लिखोगे, डेट का फॉर्मेट यही होना चाहिए, डेट के बिल्कुल सीक्वेंस में आप टाइम डालोगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। सब्जेक्ट जो है ये क्वेश्चन से ही उठाना है। सब्जेक्ट हमारा क्वेश्चन क्या? कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन बिकमिंग द कैप्टन ऑफ द स्कूल। कंग्रेचुलेशन ऑन बिकमिंग द कैप्टन। ठीक है। अब आपने ईमेल दिया है तो आपका नाम आना चाहिए और जो नाम आप यूज कर रहे हो वो सिग्नेचर में आना चाहिए। जिसको टू में लिखा है रजत, डियर रजत। डियर क्यों यूज करेंगे? क्योंकि दिस इज ए पर्सनल ईमेल। ठीक है। आप उसको बताएंगे कि मैंने आज क्वेश्चन से ही आंसर बनेगा। टुडे व्हाइल गोइंग थ्रू द मेन एजल ऑफ द स्कूल, I found a notice which was putted on the notice board from the principal's office. It was clearly mentioned that you have become the captain of the school cricket team. ये word आपके क्वेश्चन से निकल गया as it is. So I really want to congratulate you on becoming the school cricket team captain. I know you have worked really very hard, and I wish you luck for your upcoming tournament as a captain, and definitely want to succeed and work hard to take the school's name into next level or in the next level. Got it? बच्चे क्वेश्चन से ही ट्विस्ट करके लैंग्वेज बनाओ। यूज द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन ओनली। समझ गए बच्चे? यहां पे दो बातों का ध्यान रखना, एक डियर लिखना क्योंकि दिस इज अ पर्सनल ईमेल, और एंड आपने विद रिगार्ड से ही करना है, लीविंग ए लाइन विद रिगार्ड योर नेम। ओके, अगेन देयर इज अनदर क्वेश्चन। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। एज द स्टूडेंट एडिटर, आप क्या हो यहाँ पे? स्टूडेंट एडिटर। मार्क कर लो साथ में, ठीक है। कहाँ के स्टूडेंट एडिटर हो? स्कूल मैगजीन के। आपको क्या लिखना है? आर्टिकल लिखना है। किस पे? हाउ कैन यूथ हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट दिस एवल एंड द सिन फॉर योर स्कूल मैगजीन। क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन क्या क्या होते हैं अगर मैं आपसे पूछूं? आर्टिकल का फॉर्मेट, हेडिंग, सेंटर में बायलाइन, नाम, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्वेश्चन में दी है, एडिटर स्कूल मैगजीन, एडिटर स्कूल मैगजीन। समझ में आया बच्चे? यस सर। बताओ फीमेल्स के अगेंस्ट कौन कौन से क्राइम होते हैं? Who will answer? Where is Sufyan? निशांत want to answer. Okay, निशांत, कौन कौन से? चाइल्ड मैरिज हो जाती है सर, रेप। वेरी गुड। चाइल्ड मैरिज होती है, रेप होता है, सर वाइफ बीटिंग। वाइफ बीटिंग होती है। वेरी गुड मृदुल, गिव मी अ मिनट। फिर सर और ब्राइड बर्निंग। ब्राइड बर्निंग होती है। वेरी गुड, इतना ही करूँगा। you have a nice visual observation. Thank you निशांत। मृदुल, I'm coming to you. मृदुल, please unmute yourself बच्चे।
मृदुल? ओके, तो हम इन सभी प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद इनका समाधान देंगे। समाधान क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन? चाइल्ड मैरिज बैन करनी चाहिए, है ना? जो चाइल्ड मैरिज करता है उसको पनिशमेंट देनी चाहिए, उसको लीगली उसके अगेंस्ट लड़ना चाहिए। इट्स ए क्राइम, ठीक है? सेक्स डिटर्मिनेशन बैन है, सेक्स डिटर्मिनेशन कोई करता है तो उसको जेल होनी चाहिए, राइट? चाइल्ड रेप की एक डेथ सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है? प्रोस्टिट्यूशन ख़त्म होना चाहिए, राइट? वाइफ बीटिंग कोई अगर करता है तो गर्ल शुड स्पीक अप और हमें सपोर्ट करना चाहिए ताकि जो कल्प्रिट है उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो इसी प्रॉब्लम्स के सारे एक्सप्लेन करते हुए इनके सॉल्यूशंस देने हैं हमें और इन्हें एक्सप्लेन कर देना है। आपका आर्टिकल 200 to 250 वर्ड्स का होना चाहिए। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? Yes. ओके, Sir. इसके और में एक और क्वेश्चन है। द क्वेश्चन सेज यू आर द प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट। कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होता है? प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होता है बच्चे ऑफ एबीसी न्यूज़पेपर? कॉरेस्पॉन्डेंट होता है रिपोर्टर, ठीक है? आप एक न्यूज़पेपर के रिपोर्टर हो। कौन सा न्यूज़पेपर के? एबीसी न्यूज़ वर्ल्ड के। बैंक में चोरी होगी, ठीक है, जहां पे कैश लूटा गया और आपको उस पर रिपोर्ट देनी है। अब बच्चे एक चीज मुझे बताओ, जब भी हम रिपोर्ट लिखते हैं तो कौन सा टेंस यूज करते हैं? बच्चे जब भी हम रिपोर्ट लिखते हैं तो हम पास्ट टेंस यूज करते हैं। इसका क्या है फॉर्मेट? हेडिंग सेंटर में, आपका नाम, आप क्या हो? न्यूज रिपोर्टर। कौन से न्यूज़पेपर के? क्वेश्चन में दिया एबीसी न्यूज वर्ल्ड। ये आपका राइट हैंड साइड में आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? प्लेस और डेट। योर बॉडी वुड बी कमिंग इन 3 पैराग्राफ्स, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। और आप इसको किस में एक्सप्लेन करोगे? यू हैव टू राइट एवरीथिंग इन दी पास्ट टेंस। क्लियर है बच्चे? लव? Yes, sir. ओके, सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी। सेक्शन बी में जब आप एडिटिंग करोगे, एडिटिंग बच्चे यू हैव टू रिप्लेस, रीराइट। आपको सबसे पहले रीराइट करना है द पैसेज बाय रिप्लेसिंग करेक्ट वर्ड विद अनकरेक्ट वर्ड, ठीक है, इनकरेक्ट वर्ड्स के साथ। उसके बाद आप उसको इस तरह से टैबुलर फॉर्म में शो करेंगे। इज इट क्लियर? दिस इज द वे यू नीड टू आंसर द एडिटिंग पार्ट। बच्चे क्लियर है ये? Sir. ओके Yes. बच्चे सेक्शन ए की तरफ मूव करें तो सेक्शन ए में आपके 2 क्वेश्चंस हैं। पहला नोट मेकिंग, दूसरा अनसीन पैसेज। नोट मेकिंग की बात करें, यू हैव टू गिव द हेडिंग, ठीक है? हेडिंग देंगे, नोट्स लिखेंगे, सब हेडिंग लिखेंगे। इसका फॉर्मेट है 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ठीक है? जो आपकी सब हेडिंग होगी, सब हेडिंग के रिगार्डिंग ही आप उसके सब पॉइंट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एडवांटेजेस लिख रहे हैं सब हेडिंग में तो सब पॉइंट में एडवांटेजेस ही आएंगी। अगर आप सब हेडिंग में डिसएडवांटेजेस लिख रहे हैं तो सब पॉइंट्स में डिसएडवांटेजेस ही आएंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब हेडिंग आपके एडवांटेजेस की है, सब पॉइंट आपके डिसएडवांटेजेस की, वो गलत हो जाएंगे, ठीक है? एब्रीवेशन यूज करेंगे। एब्रीवेशन वही यूज करेंगे जिसे आप एब्रीवेशन बॉक्स में मेंशन करेंगे और एब्रीवेशन को साथ साथ में अंडरलाइन करते जाएंगे। मिनिमम 4 सब हेडिंग्स लिखेंगे और मिनिमम 4 सब पॉइंट्स लिखेंगे। एब्रीवेशन बॉक्स बनाएंगे प्रॉपर पेन और स्केल के साथ। एक साइड पे कीवर्ड्स लिखेंगे और एक साइड पे एब्रीवेशंस लिखेंगे। अगर आपने एब्रीवेशन यूज किया और आपने बॉक्स में मेंशन नहीं किया तो वो गलत हो जाएगा। फ्रेश पेज में आप समरी स्टार्ट करेंगे, समरी का टाइटल देंगे। समरी का टाइटल और नोट मेकिंग का टाइटल जो है वो सेम नहीं होना चाहिए। समरी आपकी 80 वर्ड्स की होनी चाहिए और समरी आपकी प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है, ठीक है? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए। इसका बेटा एक ही फंडा है, आप क्वेश्चन लिखेंगे और उसके आंसर्स देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और इसके 4 पॉइंट्स दिए हैं, तो राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक है? पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, मगर आंसर जब आप करेंगे तो ए आंसर करेंगे तो गलत हो जाएगा। ए के बाद यू नीड टू राइट द स्टेटमेंट एज इट इज। फॉर एग्जाम्पल
ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शंस हैं। आप क्वेश्चन लिखिए दिस पार्ट, ये पार्ट मत लिखिए, बी के बाद गॉड ब्लेस यू ये पूरा लिख के आंसर करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. एनी डाउट? Yes, sir. सो बच्चे, दिस वाज द डिस्कशन रिगार्डिंग वन ऑफ द सेट। आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का है। इट विल बी ऑफ 3 hours and you have to do in the particular way which has been told by me. जब भी पेपर स्टार्ट करें सेक्शन सी से स्टार्ट करें, उसके बाद सेक्शन बी करें और एंड में सेक्शन ए करें। एक चीज़ का ध्यान रखें, इंटरसेक्शन चेंज मत करें। अगर सी स्टार्ट करी है तो सी को कंप्लीट करके ही बी में जाएं। ऐसा नहीं करें कि एक क्वेश्चन सी का करें एक क्वेश्चन बी का करें, इवैल्यूएटर विल क्रॉस योर पेपर। सेक्शन सी कंप्लीट करने के बाद, जब आप सेक्शन सी को स्टार्ट करें, इसे कंप्लीट करने के बाद ही स्विच करें सेक्शन बी में, और सेक्शन बी को कंप्लीट करने के बाद ही स्विच करें सेक्शन ए में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Okay, so we are ending our discussion here only. I will be sharing the video with you. Kindly go through it. If there would be any doubt, feel free to connect me anytime. Thank you and have a nice day.